Yes, good morning. So, in last lecture, we discussed some characteristics or some terms involved in wave concept. So now थोड़ा अपना track change होगा, ये मैंने last time बताया था, right? So these are the terminology we discussed in a last lecture. Once again, I am repeating these things. ध्यान से देखना, wave हम लोग अभी consider कर रहे wave. So when I talk about a wave ऐसे होगा. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा. वेव ऐसे होते हैं, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड एज वन वेव. यहां से यहां तक, दिस कॉल्ड एज वन वेव. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or two successive trough or distance between any 2 points on a wave which are in a same phase. ये ऐसे सेम फेज में है, इवन ये पॉइंट भी सेम फेज में है. So the distance between this point and this point, or distance between this point and this point, or distance between this point and this point, or distance between this point and this point remains same, and that is called as what? Wavelength. ठीक है? It is generally measured in terms of angstrom unit, A naught, or nanometer. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, और 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 10 मीटर. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 मीटर और 10 angstrom. फ्रीक्वेंसी, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकेंड में कितने वेव्स जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकेंड में कितने वेव्स जा रहे हैं. द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट in 1 second is called as frequency. Everybody can hear me? Yes? Yes, sir. Good. Okay. It is expressed in, it is represented by nu. It is called a nu, nu. So it is not v. ऐसे थोड़ा सा स्लिपिंग भी निकालते हैं. It is expressed in cycles per second, CPS, or hertz. 1 hertz is equal to 1 CPS. Other units are 1 kilohertz, 10 raised to 3 hertz, 10 raised to 3 CPS. 1 megahertz, 10 raised to 6 hertz, or 10 raised to 6 CPS. One single wave consists of one crest and one trough. As I already told you, यहाँ से यहाँ तक, मतलब if I consider from here, this point to यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव हो गया. Okay, and that is nothing but your one cycle. Hence one cycle completed when a crest followed by trough passes through a reference point. Velocity, the distance traveled by a wave in 1 second is called as velocity of wave. It is denoted by C or V. Okay, it is also the product of frequency and wavelength. So C, velocity, is equal to frequency into wavelength. The velocity of all types of electromagnetic radiations in space or in vacuum is same and is equal to velocity of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. But they may differ in their wavelength or frequency. उनका wavelength और frequency change हो सकता है. वेव नंबर, अच्छा वेव नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार. न्यू बार, द नंबर ऑफ वेव. समझो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने लिया और 1 मीटर का डिस्टेंस लिया, तो इसमें कितने वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव नंबर. ओके, it is represented by nu bar. Its unit is centimeter inverse because it is a reciprocal of lambda. Reciprocal of lambda is called as wave number. Therefore wave number nu bar is equal to nu bar is equal to velocity upon frequency upon velocity. Amplitude, तो ये जो maximum height है, ये one, this one or this one, so this is called as amplitude. Okay, the height or a crest
or a depth of the trough from the line of the propagation of wave is called as amplitude. The amplitude of the wave determines the intensity, brightness of the radiation. Amplitude of the wave determines the intensity or brightness of the radiation. समझ में आया? Yes. अच्छा, ये थोड़ा formulas लिख लो. Velocity is equal to nu into lambda. Conversion factor तो तुम लोग को पता है ही. Okay. So let us solve few problem based on this. अच्छा, ये भी मैंने बताया था तुम लोगों को. Order of electromagnetic spectrum. Cosmic rays का वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. ओके, कॉस्मिक रेस. अच्छा, आगे जाके हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे. जिसका वेवलेंथ छोटा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है और जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है उसका एनर्जी कम होता है. ओके, लॉन्गर द वेवलेंथ स्मॉलर इज द एनर्जी, शॉर्टर द वेवलेंथ हायर इज द एनर्जी. ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कैसे रिलेशन है. There is a relation. We are going to discuss that relation. Is that okay? So, uh, order of wavelengths in an electromagnetic spectrum: cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible rays, infrared, microwaves, and radio waves. Okay. So let us solve a problem now. एक problem देखते हैं. तुम लोग ट्राई करोगे? Yes. हाँ, प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूलास. इसमें जो जो कन्वर्जेंस वगैरह है वो एक बार पेपर पे लिख लेना. व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम तुम लोग को ये काम आएगा. प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी. डोंट राइट द डेफिनेशन, जस्ट राइट डाउन द कन्वर्जन फैक्टर्स. एवरीबॉडी नो द कन्वर्जन फैक्टर. जिनको नहीं पता है प्लीज राइट डाउन दोस कन्वर्जन फैक्टर. एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. Okay, 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. 1 picometer is equal to 10⁻12 meter. ये मीटर के बारे में बात करें. ओके, बाद में ये किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज तो पता है ही तुम लोग को. उसके बाद velocity is equal to frequency into wavelength. Velocity is equal to frequency into wavelength. ओके, ये एक हो गया. और वेव नंबर ये तो तुम लोग कर सकते हो. मतलब आई डोंट थिंक सो कि यू रिक्वायर्ड. ये एक बार जिसको पता है ना वो सब कुछ खेल सकते हैं हम लोग उसके साथ. हाँ, प्लीज राइट डाउन दीज कन्वर्जेंस एंड द फॉर्मूला. कमुदी. So we have to write the whole page or only the red नो नो and नो, yellow? ओनली कन्वर्जन. मैंने बताया ना, ये देखो, ये लिखो और ये लिखो, ये वाला फॉर्मूला, और बाद में ये वाला फॉर्मूला लिखो. दैट्स इट. ये तीन चीजें लिखना. एक ना अभी आदत डाल देना. एक अच्छी चीज मैं तुम लोग को बताता हूँ. जब भी केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, okay, whenever you have a chemistry lecture, always remember, watch the video of previous lecture. ये आदत डाल देना.
वीडियो जो था ना, हर लेक्चर का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वॉच द वीडियो बिफोर द लेक्चर। मतलब आज फ्राइडे है तो थर्सडे रात को अगर जल्दी उठते हो फ्राइडे को, मतलब इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन फ्राइडे, जस्ट वॉच द वीडियो। और वो क्या होता है, वो फास्ट फॉरवर्ड में देखना होता है। ओके तो वो मुझे नहीं लगता इफ यू हैव अ 2 आवर लेक्चर वीडियो बना ही रहते 1.5 आवर, उससे भी कम, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वगैरह में तुम लोग का पूरा वीडियो देख के हो जाएगा। सो मेक दैट हैबिट नाउ। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। उससे क्या होगा मालूम है, Yes, sir. यूर अंडरस्टैंडिंग विल बी ऑन अ हाई, और तुम लोग ना भूलोगे नहीं। सेकेंड थिंग, सी आई लाइक टू डू वर्क इन अ स्मार्ट वे। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वे? क्या होता है मीनिंग ऑफ द पेरेंट्स? एक मिनट, मृणाली, मृणाली आहे का? हो सर. विराज सर क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं आ रहा है? नहीं सर, आई एम ट्राइंग. ओके चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना है। देखो उन्होंने फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू बोला है, कितना बोला है? 1368 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो गया? 1368 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हर्ट्ज। क्या निकालना है? लैम्बडा निकालना है मुझे, बोला। तो फॉर अच्छा इधर सी क्या होगा? सी होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? सो अभी फॉर्मूला क्या होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू, यस, सी इंटू मतलब न्यू मल्टीप्लाइड बाय सी ना, यस। तो न्यू कितना है? नहीं, गलत। C divided by न्यू इज इक्वल टू nu. सी अपॉन लैम्बडा, therefore lambda is equal to c upon nu। तो c कितना है? 3 इंटू 10⁸ और न्यू कितना है? 1368 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 220 मीटर्स आता है। अप्रोक्सीमेटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। कमुदी फॉलोड, कमुदी। Yes sir. हाँ समझ लगा? Yes. हाँ विराज समझा? चबी, मृणाली समझ लगा? Yes sir. Okay, now see the second problem. Calculate nu bar and nu of yellow radiations having a wavelength of 5800 angstrom. चलो करो।
ये सब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है. Vatsal, the first one is new bar, na? Yes, sir. Vatsal, हाँ something is wrong. I think what you did, na? Uh, 1 angstrom is equal to how many centimeters, Vatsal? 10⁻⁶ centimeters. कैसे 10⁻⁻⁶. Sorry. कैसे कैसे -6 कैसे होगा? -6 कैसे होगा? 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर मैंने बोला ना, सेंटीमीटर क्या होगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा ना. यहाँ पे मैंने -8 सेंटीमीटर लिखा है इसके लिए. -8 मीटर. किसमें? -10 मीटर होता है. मैंने नोटिंग में मेरी मिस्टेक है. हाँ हाँ, ओके, डू दैट करेक्शन.
एक मिनट। हाँ, अरे बाप रे। Okay, okay, I will explain. I will explain. चलो मैं आंसर बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दिया है ना, तो उसको मैं पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, है ना। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। तो कितना होगा 5800, since they are asking in a centimeter, so 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो न्यू बार इज इक्वल टू व्हाट, 1 upon lambda, that is 1 upon 5800 multiplied by 10 raised to minus 8. Is that clear? तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 raised to 3 हो गया, 10 raised to 3 मतलब 10 raised to minus 5, so हो जाएगा 10 raised to 5 divided by, so 1 divided by 5.8, so 5.8 इधर होगा, this is 1.72 into 10 raised to 4 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा न्यू बार। तो जितने लोग का ये आंसर आ गया वो करेक्ट है, ओके। उसके बाद न्यू, याद रखना एग्जाम में तुम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, ओके। उसका मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन करना पड़ेगा तुम लोग को, ये सीखना पड़ेगा। अभी क्या निकालना है, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्बडा, C is what, 3 into 10 raised to 8 divided by 5800 multiplied by 10 raised to minus 8, minus 8 है ना, yes। तो ये हो जाएगा 3 into 10 raised to 8 multiplied by 10 raised to 5 divided by 5.8, तो ये आएगा कितना, 3 divided by 5.8, so the answer is 5.172 multiplied by 10 raised to 13. कितना आ रहा है आंसर, yes, so the answer is, हाँ I इसका placed यूनिट, the answer in the chat box. हाँ I got it. यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने हैं क्या, इसका यूनिट क्या होगा, सीपीएस। सीपीएस मतलब साइकिल्स पर सेकंड, और हर्ट्ज भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। ओ आई एम सॉरी, एक मिनट, मैंने कुछ तो गलती किया है यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 10 raised to 10 होना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड होता है ना, So I made a mistake over there, समझ में है ना। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग क्या लेते हैं, c is equal to 3 into 10 raised to 8
मीटर पर सेकंड होता है, तो होगा 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड होगा। सो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻10, राइट, एंड इसलिए ये भी हो जाएगा सेम वे 10⁻10, तो इसलिए ये बन जाएगा 10⁻14 CPS cycles per second। हाँ, वेदांत पाटिल, जस्ट चेक इट नाउ, ठीक है। Yes, I gave the answer 5.17 into 10 raised to 14. हाँ, ओके, हाँ, राइट राइट राइट। वन मोर प्रॉब्लम यू वांट, और बस एक लास्ट प्रॉब्लम ले लो, चलो, अच्छा प्रॉब्लम है ये। यस, टेक डाउन दिस प्रॉब्लम। ये आ गया, सबको समझ में आया? कौमुदी, हैव यू गॉट द पॉइंट? सी वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक? मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं? यूनिट्स में मिस्टेक्स हो रहे हैं, ओके, हाँ, कन्वर्जन में मिस्टेक्स हो रहे हैं, हाँ, तो वो चीजें हम लोग को अवॉइड करनी है, एंड इट इज पॉसिबल ओनली बाय प्रैक्टिस, दैट्स इट। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लो, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। क्या है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक a radio wave of a frequency 6 into 10⁻³ per second to travel from Mars to Earth, a distance of 8 into 10⁻7 kilometer? करो, यहाँ पे क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग, मतलब we need to calculate what? Time।
वत्सल, ये क्या है? वेदांत, अरे I don't know what kind of a calculation you use. Janvi, काहीतरी गडबड आहे का? Uh, 4 hold on, I will check you, Chavi. हाँ Chavi, you are correct. Yes Vedika, correct. So can you explain, please? Yes, yes, definitely. I need to wait for some time. हाँ, no problem Shruti. चलो मैं बता रहा हूँ आंसर, चेक करो जरा एक बार. चलो देखो अभी क्या गड़बड़ क्या मुझे पता नहीं, तुम लोगों ने क्या किया वो. दे हैव गिवन यू फ्रीक्वेंसी ना, कितना दिया है? 6 into 10⁻³ सेकेंड्स इनवर्स. बाद में उन्होंने डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस, राइट. इसको मैं डी लिखता हूं, डिस्टेंस मतलब क्या होगा? 8 into 10⁻⁷ किलोमीटर ना. तो मीटर में कितना होगा? 8 into 10⁻10 मीटर हो गया, है ना. तो उन्होंने पूछा क्या है? व्हाट दे आस्क, अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव v हम लोग क्या लेंगे? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो क्या निकालना है मुझे? टाइम निकालना है, मतलब t निकालना है ना मुझे. हाउ विल यू कैलकुलेट दैट t? हाउ विल यू कैलकुलेट? तो पहले मुझे वेलोसिटी पहले मुझे निकालना पड़ेगा, राइट. सो टाइम मतलब यहाँ पे मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी का वैसे भी कुछ तो यूज होगा नहीं, डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे. टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना है? 8 into 10⁻10 मीटर, और वेलोसिटी कितना है? 3 into 10⁸ मीटर पर
सेकेंड, है ना? पता है ना ये फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट मुझे पता है, द रेडिएशन, राइट। अभी ये करो, कितना आता है देखो जरा, हाउ मच इज द आंसर। वेरी सिंपल, मतलब इसमें ये चीज अननेसेसरी थी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। लोगों ने क्या क्या किया उसके साथ मेरे को पता नहीं। यस, यहाँ पे आता है आंसर 2.66 इंटू 10⁻²² सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये होता है 4.44 मिनट्स। दैट्स इट। वत्सल, समझ में आया? हाँ सर। अथर्व, वेदांत, Yes, sir. वेरी सिंपल। अमी, सोहम, Janvi, you also gave me the very weird answer. Yeah, how you got that 1.33 into 10⁻⁷ second? I don't know. How you got that? Many of you got that answer. Can anybody? Soham, how would you get that answer? 1.3 into 10⁻⁷ second? I divided the distance by frequency accidentally. Accidentally? अरे उसका यूनिट चेक करो ना। देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, और फ्रीक्वेंसी का डिवाइड किया है ना, तो ये 1 Yes. अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, m इंटू मतलब मीटर इंटू सेकेंड हो गया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, समझ रहे हो? Yes, sir. इट इज नथिंग ना, ये कुछ नहीं है। एंड वी वांट हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम चाहिए, मतलब सेकेंड चाहिए ना। यस, सी, जो चीजें तुम लोगों ने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ी, क्या पढ़ा था, यूनिट्स, डायमेंशंस, है ना, मेजरमेंट्स एंड यूनिट डायमेंशन। उसमें तुम लोग देखते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट सेम होना चाहिए ना। सो दैट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री, एंड समहाउ मैथ्स में भी होता है यूजफुल। सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ओके। कुछ लोगों ने अच्छे से किया, मतलब आई थिंक आई वांट टू टेक, श्रुति गॉट द आंसर, then Vedika got the answer, Chabi got the answer, और नहीं, बाकी लोगों ने नहीं किया। ओके, हाँ, कौमुदी फॉलोड। Yes, हाँ sir. हाँ, Yes, तो sir. या अच्छा, डोंट गेट डिस्करेज हु वोंट गेट द आंसर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको आंसर नहीं आया। सो पहले ये समझ लो एंड मेक दिस थिंग क्लियर इन द माइंड कि क्या चेक करना है अपने को, व्हाट वी नीड टू चेक, यूनिट्स। हाँ, यूनिट्स के साथ खेलोगे ना तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड नाउ। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, बस ना प्रॉब्लम, बस ना। So how did we get 4.44 minutes? अरे वो सेकंड है ना, 2.66 into 10⁻² सेकंड है ना, मतलब 266 सेकंड डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा? हेलो, समझ में आया ना क्या किया वो? 0.433. कैसे रे बाबा, वंस देख 1 मिनट में 0.4433. इंटू 10⁻² ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 sir. तो x मिनट्स में 2.66 इंटू 10⁻² सेकंड है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 2.66 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 60। तो इसका आंसर 0, ये कितना होगा, 266 डिवाइडेड बाय 60। इसका आंसर 0 पॉइंट कैसे आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है ना,
Yes, sir. Got it? Vedant, na? Vedant? Yes, sir. Yes. So now I think you will get 4.44. Yeah, still you are getting 0.44. Yes, sir. Got it. Otherwise your calculator will be No, wrong. sir. I got it. I got it. Good, good. So please write it down. चलो आगे जाए. बस ना इतना problem. Okay, that's it. Now we'll go for the next concept. Yeah, done, sir. Okay. So now we are moving ahead to the next concept. That is थोड़ा अभी हम लोग कुछ अलग चीजें पढ़े. एटम से थोड़ा मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग चीजें हम लोग पढ़ेंगे. इतना सब कुछ किया हम लोगों ने, right? Now we need to understand. Somebody asked me, sir, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? उसके बारे में थोड़ा बताओ सर. But sir, you told me ना. नहीं सर, मेरे को वेलोसिटी और वो सब में कंफ्यूज हो गया था. अभी हो गया क्लियर? हाँ, हो गया. अच्छा. Now why we are, मैंने बताया ना कि why we have to study the, ये सब क्यों पढ़ा हम लोगों ने? So let us consider the atomic spectra and their type. क्या है? Atomic, whenever I say atomic spectra, जब भी मैं स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ तो इसका मतलब वो जो स्पेक्ट्रा है वो क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ, मतलब वो कैसे दिखता है. तो हम लोग को तो विजिबल लाइट दिखता है ना 7 कलर, बट जो बाकी रेडिएशन है वी कैन फील देम बाय वेरियस सोर्सेस. मतलब जिंक सल्फाइड पे इंपैक्ट करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे इंपैक्ट करेंगे, रेडियो वेव्स वगैरह तो हम लोग कैप्चर करते हैं, इंफ्रारेड तो अपने टीवी में होता है, माइक्रोवेव अवन है, गामा रेज, एक्स रेज, हम लोग वी आर यूजिंग दोस. कॉस्मिक रेज के बारे में अपने को पता है. ओके. सो ये सब जो स्पेक्ट्रम्स है, ये स्पेक्ट्रास है, वो कैसे जनरेट होते हैं? Atoms gives discontinuous or line spectra. Atoms gives discontinuous or line spectra. Hold on. So I'll just read this part and I will explain you कि क्या है ये. The atomic structure of an atom is a series of bright lines or of bonds separated from each other by a dark space. तो इसके लिए हम लोग ना उसको ऐसा बोलते हैं, we have a bright dark, bright dark, bright dark. ऐसे अपने को बैंड्स मिलते हैं, लाइंस मिलते हैं. ओके. Each line in a spectrum corresponds to a specific wavelength. तो अगर मैं बात करूं अपना वेब ग्योर की, मतलब जो 7 कलर जो अपने को दिखते हैं, है ना, तो उसमें एवरी कलर हैज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. एवरी कलर हैज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. हाँ, मैं ये विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा हूं. There are mainly two types of spectra.
एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो अभी एक मैं चीज बताता हूँ, ये जो है ये तो सबको पता ही है, क्या ही प्रिज्म। अगर मैंने इसमें से व्हाइट लाइट पास किया, इफ आई पास अ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं उसको ब्लैक करूंगा। एंड इफ आई पास थ्रू दिस, व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग 7 डिफरेंट कलर्स, राइट। तो जब मैं यहाँ पे 7 कलर्स मुझे मिल रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 7 कलर मुझे मिल रहे हैं। अगर ये 7 कलर मैंने कोई दूसरे सब्सटेंस में से पास किया एंड आई एम गेटिंग ओनली येलो कलर यहाँ पे, तो बाकी कलर गायब किधर हो गए, दे आर एब्सॉर्ब इन दिस सब्सटेंस। तो ये जो मुझे मिला इसको बोलते हैं एब्सॉर्ब। मैंने ये सिंप्लीफाइड वर्जन बताया। ये जो मुझे मिला उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अंडरस्टूड? नाउ सपोज आई हैव अ लाइट सरफेस, सॉरी अ सरफेस, ओके। इस पे मैंने ऐसे ही विजिबल लाइट पास किया और जब मैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे ना यहाँ पे रेड कलर ही दिख रहा है। व्हाट, विच कलर दिख रहा है, रेड कलर ही दिख रहा है। मतलब ये जो सरफेस है वो सरफेस मुझे रेड कलर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी सब कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए और एक कलर एमिट हो गया, एमिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ये मैंने सिंपल वे ऑफ understanding the absorption and emission spectrum, simplistic way, okay. So we'll read that part. Atomic emission spectra. Emission spectra are obtained when the radiations emitted from a substance that have absorbed energy, either passing electric discharge through a gas at low pressure or by heating the substance at high temperature, are analyzed with the help of spectroscope. The spectra consist of sharp zone, well-defined lines, each corresponding to a definite frequency on dark background. एक सिंपल तरीका, अगर समझो मैंने पता है ना आयरन रॉड को अगर मैंने हीट किया, हीट, तो पता है अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कलर अलग अलग होता है। वो रॉड जो है ना, वो रॉड अलग अलग तरीके से दिखता है, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अभी वो स्पेक्ट्रा नहीं, वो कलर दिखता है मुझे, बट अगर समझो मैंने उसको एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें अगर मैंने रख दिया तो मुझे उसमें अलग अलग लाइंस दिखेंगे, लाइंस, ओके। द ईच लाइन रिप्रेजेंट अ स्पेक्ट्रम व्हिच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अच्छा, वो जो लाइंस मुझे दिख रहे हैं ये है अपना लाइंस, these are the line, ये लाइंस, ऐसे लाइंस दिखेंगे। सो ये जो लाइंस है, these are the lines which are against the dark background। इसलिए मैंने क्या बोला, क्या मिलेगा मुझे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे मुझे पैटर्न मिले। That pattern is called as atomic emission spectra. Is that clear? उसका सिंपलिस्टिक एग्जांपल आयरन रॉड, ओके। कोई भी रॉड लो या आयरन मटेरियल, तुम लोगों ने देखा होगा वो भट्टी वगैरह में गर्म करते हैं ना जब, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, पहले व्हाइट होता है ना, उसके बाद वो रेड हो जाता है, और ज्यादा हीट किया तो गोल्डन येलो हो जाता है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है कलर क्या होता है उसका, चेंज होते जाता है। वो कलर चेंज क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक
एमिशन स्पेक्ट्रा। उस सब्सटेंस को अगर मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ इंस्ट्रूमेंट which is measured to determine wavelength of light, wavelength of light। तो मुझे ऐसे पता चला कि there are dark bright dark bright dark bright lines, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। यस, एनीबॉडी हैव एनी ऑब्जेक्शन? किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? चलो अभी मैं दूसरा भी बता देता हूँ, फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, when a white light is allowed to pass through a gas or a solution of some salt and transmitted light is analyzed, we obtain a spectrum in which dark lines are observed in an otherwise continuous spectrum। मतलब we are getting a spectrum, same spectrum, but अभी यह spectrum हम लोग कैसे है, देखो ये समझो गैस चेंबर है और यहां से मैंने लाइट पास किया, तो यहाँ पे जो मुझे ऑब्जर्वेशन होते हैं कि ये स्लिट हो गया, उसके बाद यहाँ पे जब मैं ऑब्जर्व करता है इसको, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे जो ये साइड में जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा? It is the arrangement of different types of electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength। तो ये देखो wavelength है यहाँ पे, पहला क्या है, रेडियो वेव्स, उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। देखो फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, है ना, 10⁻³ 10⁻⁻8। अंडरस्टूड? यस, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट? ओके, हाँ, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बीच में जगह है, दिस इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो कितना छोटा है, 400 नैनोमीटर टू अराउंड 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये अपना विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस रेंज में जो मतलब जो कलर्स हम लोग को दिखते हैं, मुझे दिख रहे, ह्यूमन बीइंग्स को दिखते हैं, they are called as visible spectra। so it's very interesting कि लाइट जो है ना, लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है वो विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग है। अभी अगर वहां पे दूसरे एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करें तो वो बताना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अभी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल को कौन सा कलर दिखता है, उसको क्या दिखता है, बट वो भी रिलेटिव है, इट इज रिलेटिव टू द ह्यूमन बीइंग, ये याद रखें। इज दैट क्लियर? यस, ओके। सो स्पेक्ट्रा कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, कौन से है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में these are the, ये मैंने कल भी बताया था, तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे अरेंजमेंट है, या now let us understand
अच्छा एक काम करो, ये पहले लिख लो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा लिख लो. Okay, just put the heading atomic spectra and their type. Write down this. Yes, हो गया, लिख के हो गया. Wait, sir. Okay.
Yes, done. Yes, sir. ये भी Yes, लिख sir. लो, ये भी लिख लो, absorption spectra. How many of you heard the name quantum? Quantum mechanics, quantum model, quantum dots, ये सब चीजें तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, मतलब सुनी होंगी. Okay, those who are reading the extra material, उन्होंने पढ़ा होगा. Okay, तो ये क्वांटम है क्या? So ये टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन किया the scientist Max Planck. Okay, Max Planck. He is called as father of quantum theory, quantum mechanical model of an atom. अब ये क्वांटम थियरी क्या है ये पहले समझ लेते हैं. ये सिंपल है समझने के लिए. What he is saying कि a light consists of particle in nature. Okay, मतलब सुनो जरा ध्यान से देखना. अभी तक ये कंसिडर किया कि लाइट ऐसे होगा. ये क्या है? वेव ना. उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होगा. ओके, सो ईच मतलब ये जो ईच डॉट है, डॉट, ईच डॉट, that each dot is called as a quantum, and that each dot, मैं थोड़ा डॉट बड़ा कर देता हूँ, मैग्नीफाई करता हूँ. तो ये जो each dot है, that dot is filled with energy. Okay, that dot is filled with energy. So इसका सिंगुलर है क्वांटम, प्लूरल है क्वांटा. So there are many quantas. So कोई भी रेडिएशन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी एक्स-रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ क्वांटम, क्वांटाज वी कैन से. और एक क्वांटम का जो एनर्जी होता है ना, एक क्वांटम का एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to frequency of radiation. Okay, energy of each quantum. सर क्या कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? सर एटम की तरह रह गया. रुको, हम लोग आएंगे एटम की तरह. ये सब हम लोग पता है ना, मम्मी जब खाना बनाती है तो खाना बनाते से मतलब समझो आज पाव भाजी करना है अपने को, तो मम्मी सब कुछ तैयारी करती है ना शुरुआत में, पता है ना. तो ये सब तैयारी चल रही है अपनी वो एटम की तरफ. मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी आर गोइंग टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम. मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? सो दैट अभी तुम लोग के दिमाग में कंफ्यूजन, मतलब कुछ क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है. ये ऐसा सिचुएशन आएगा, मोड आएगा, and if I am doing that then I am doing a great job, you know. Okay, so don't worry, धीरे धीरे समझ में आएगा. और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगा, सिर्फ वही चीजें करो और डिटेल में उसके डेप्थ में मत जाना. Why? Because if you go in a deep, we will get that information, but it is very difficult to convert into knowledge at this your level. मतलब तुम लोग के लेवल में वो difficult, right? So ये थोड़ा रिसर्च का फंडा हो गया. तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, क्वांटम को हम लोग बोलते हैं बंडल और पैकेट. तो हर एक पैकेट, ये डॉट, हर एक डॉट, पैकेट और बंडल, क्वांटम का जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू, which is E is equal to h nu, where h is called as Planck's constant.
उसने डिटरमाइन करके रखा है, तो वी आर नॉट, तो वो कैसे आया उससे अपने को भी लेना देना। 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड, ये यूनिट है उसका। What do you mean by nu? Nu का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स और पर सेकेंड। और E क्या है? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। तो what is the total energy? E total is equal to N H nu, where N stand for number of quantas, number of quanta। आइंस्टाइन ने सेम प्रिंसिपल यूज किया फॉर द विजिबल लाइट, और तब उसने वो क्वांटम डॉट को बना दिया फोटॉन। क्वांटम डॉट और क्वांटम और एनर्जी बंडल को उसने नाम क्या दिया? फोटॉन। इज दैट क्लियर? यस। सो प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या बोलता है? प्लैंक्स क्वांटम थियरी, एनर्जी emitted or absorbed, energy emitted or absorbed is not in continuous manner। वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा ऐसे जैसे वेव आता है वैसे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट और एनर्जी बंडल्स। तो बहुत छोटा होता है बंडल, मतलब तुम लोग ऐसा बंडल मत पकड़ो, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको डॉट भी बोलते हैं। ओके, और हेंस लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। ये किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने बताया। ओके, ईच बंडल is called as quantum and its energy is directly proportional to frequency of radiation। Energy is directly proportional to frequency of radiation, that is each quantum has an energy equal to h into nu, where h is called as Planck's constant and nu is the frequency of radiation। So the total energy is equal to what? N H nu। Okay, clear? अभी जरा ध्यान से देखो, जो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया था कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी कम होगा। See how? E is equal to H nu। What do you mean by frequency? Frequency is equal to velocity upon lambda. So what should I write? H multiplied by V upon lambda। देखो जरा इधर, अगर ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, अगर V भी कांस्टेंट है तो E is inversely proportional to lambda। तो इसका मतलब जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसका एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा। जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसका एनर्जी क्या रहेगा? कम। Is that clear? Yes, this is a new concept today you learn for the atomic structure। atomic structure सीखने के लिए ये एक नया कंसेप्ट। अभी देखो ना, ये सब मुझे पढ़ना था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसलिए मैंने शुरुआत किससे की? वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ा मैंने। ये पढ़ने के क्यों पढ़ना चालू किया मैंने? क्योंकि रुदरफोर्ड के थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स है ना। रुदरफोर्ड के थ्योरी में ड्रॉबैक्स है, उसको ओवरकम करने के लिए मुझे नया थ्योरी पढ़ना है। Now to understand that new theory, I should know some basics ना। What are those basics? तो ये basics हम लोग पढ़े। Is that clear? Yes. चलो लिखो Planck's quantum theory। मैं बता रहा हूँ, ये मत लिखना। I'll tell you what should you write? Planck's quantum theory पढ़ा।
Yeah, this one. Just write down the points. ये देखो. Max Planck, just put the heading Planck's quantum theory of radiation. Planck's quantum theory of radiation. ऐसे लिखना. This was put forward by Max Planck. This was put forward by Max Planck. Vatsal, are you there? Yes, sir. Yes. Are you sleeping? No, sir. Good. Anybody sleeping? अच्छा मतलब सब लोग सो रहे हैं. No, sir. No, Okay, sir. okay. So Planck's quantum theory, it was given by Max Planck. बाद में ये लिखना, यहां से लिखना, ये मत लिखना. मैं पढ़ता हूं, ये क्या है, कुछ समझेगा नहीं. He found that molecules of hot body emitted light radiation discontinuously in the form of small energy bundle. This led him to propose a new theory known as a quantum theory of radiation. The salient features are as follows. Please write down this. ये यहाँ से शुरुआत करना. First point. Radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of small energy bundles or energy packets known as quanta or photons. This also implies that the radiations obtained from excited atom consist of stream of photons and not continuous wave. Bracket में लिखना particle nature. Second point, each quantum of radiation is associated with a definite amount of energy depending upon the frequency of radiation. So E is equal to h nu, where nu is the frequency of emitted photons and h is the Planck's constant. Value दिया है. Okay. So इसको solve किया. So the body has emits. Body can emit or absorb energy only in an integral multiples of quantum, that is nh nu. Okay. अच्छा, इसमें और एक पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे. फोर्थ पॉइंट, हाँ ये लिख लो. तब तक मैं फोर्थ पॉइंट ऐड करता हूँ इसमें. रीड ओनली 5. ठीक है, मैं बताता हूँ फोर्थ पॉइंट. जस्ट राइट डाउन. ये लिखो. ये हो गया तो मुझे बता देना. आई विल ऐड द फोर्थ पॉइंट.
If done, write down the fourth point now. बताओ fourth point. Yes, sir. Fourth point लिखो. Thus, energy of radiation is inversely proportional to wavelength. Inversely proportional to wavelength. That is, some people may feel ये क्या spoon feeding है. हाँ, but जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो ये काम की चीज है. That is, shorter the wavelength, higher is the energy. Shorter the wavelength, higher is the energy, and longer the wavelength, lower is the energy. ठीक है. ये एक प्रॉब्लम करते हैं and then we'll stop. ये प्रॉब्लम नंबर कितना है जरा बता सकते हो? This is problem number 4. आज का. चलो करो ये. Give me the answer. Yes, please tell me the answer. Avoid using calculators. Do some approximate calculations. Soham.
Yes, Swam. Yes, sir. Hi. Hey. What's that? What is this? क्या कर रहे तुम लोग? E is equal to hc upon lambda ना? नहीं. हाँ ईशान, correct. अम्मी. Sir, C is Yes, 3 sir. into 10 raised to 8. हाँ. So what you take? Amit, check once again. हाँ वत्सल. Correct. हाँ वेदांत, correct. वेदांत 10 power चुकलंय. Yes Swam, correct. वेदांत पंडोस्कर 10 power चुकलंय. वेदांत पाटील गडबड आहे. Yes Janvi, correct. Okay. Janvi, what happened with your program schedule? अजून काही सांगितलं नाहीये त्यांनी टायमिंग्स मध्ये. अच्छा, ठीक आहे. मी लेक्चरचा टायमिंग चेंज नाही करत आहे. फक्त टीचर्सना मेसेज टाकून ठेव की मला रेकॉर्डिंग द्या म्हणून. ते देतील मग. हा थँक्यू सर. अथर्व करेक्ट. वेदांत पांडुस्कर करेक्ट. येस व्हेरी गुड. कौमुदी करेक्ट. मृणाली गडबड. चुकलं बघ कॅल्क्युलेशन काहीतरी. विधी 10 पॉवर मध्ये गडबड आहे बघ जरा. एवढी नाही येणार का एनर्जी. 10⁻10 म्हणजे खूप जास्त आले. तर मायनस आहे का प्लस आहे ते चेक कर. हा बरोबर 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 विधी. योगिता करेक्ट. वेदिका आंसर.
नाही 10 पॉवर मध्ये चुकलं. नील, विराज, अरे विराज आज कुछ बोल ही नहीं रहा है. विराज ठीक है ना तबियत तेरा? विराज Yes, sir. बता रहा हूं, देख लो. रोहन, यस मृणाली, करेक्ट. रोहन येस सर. काय आलं नाही समजलं? नाही सर, आलंय आन्सर बट चुकलंय वाटतंय म्हणजे. अब तू येतं टाक, ग्रुप वरती टाक, मग तुला समजेल ना. चॅट बॉक्स मध्ये टाक तर मग मी तुला सांगेन ना ते चूक आहे ते मी ठरवेन ना. तुला हे माहित आहे का, तू जे आन्सर टाकतोस ते फक्त मलाच दिसतं, बाकी कोणाला नाही दिसत. सो लाजू नकोस. विराज आंसर आ गया? Yes, sir. More Okay. than. You haven't put the answer. Make a habit of keeping units. मतलब जब भी तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे तो यूनिट्स भी डाल देना उसमें. इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 लेके ये 2 कर देता हूँ. ये डिवाइडेड बाय 2 होगा. 10 रेज़ टू माइनस, मतलब ये ऊपर जाएगा तो 24 हो जाएगा. नहीं, -34 प्लस 24 ये हो जाएगा -10. सो आंसर इज 3.31 into 10 raised to -10 joules. ये आंसर मतलब इसके नजदीक आंसर आना चाहिए. I don't know why you made a mistake in a 10 power. अभी भी हम लोग 10 power में गड़बड़ कर रहे हैं. Please stick to your basics. वो basics को हिलने मत देना. Okay? Unnecessary तुम लोग के मार्क्स जाएंगे. Is that clear? चलो, here we stop for today. Those who have a doubt, they can stay with me. Those who don't have, bye bye. Bye, sir.